Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to Test Your Knowledge series. Yesterday we discussed MCQs from climate portion of the geography, and today we are going to discuss MCQs from environment, ecology and biodiversity portion. The procedure will be same as that of yesterday. First I am going to read question, then I will provide you with 5 seconds to answer, then I will provide you with answer, then we move on to next question. Then we again read question second, I will provide you with 5 seconds, then I will answer it. And the procedure continues till all question will be answered. And at the end, if you're not satisfied with the result, you can continue analysis with me. So let's start. Question number 1. In which level of ecological organization non-living things are first being included? Community, ecosystem, biome or biosphere? And the answer is ecosystem. First, it is a definition of niche. Basically, it is a function which is performed by any species in its habitat. Now, which of the following is not type of a niche? And here we are talking about which of the following is not a type of niche. Option A, habitat niche. Second is food niche. Third one is need niche. And fourth one is reproduction niche. Hope you answered it already. And the answer is need niche. Next question. Which of the following is not a biotic factor? Fungi, algae, air, decomposers. And the answer is C, air. Next question. Which of the following is not correct? You should focus on not correct about ecotone. First, newly formed ecotone has high chances of species extinction. Mature ecotone has high chances of species survival. Ecotone will be a region between two diverse ecosystems. And D option, mature ecotone will have less biodiversity than the adjacent ecosystems. This answer is going to take more than 5 seconds, so you can pause the video. And the answer is D. Next question. Which of the following statement is not correct? You should always focus on not. The flow of energy in an ecosystem is bidirectional. Autotrophs will be at bottom of the pyramid of energy flow. Herbivores are also called secondary producers. And option D, plants are called primary producers. And the correct answer is option A. Next question. Consider the following statement. Statement first. Energy pyramid is always upright. Biomass pyramid of terrestrial ecosystem is inverted. Third option. Biomass pyramid of aquatic ecosystem is upright. You can pause the video if you want more time. And the correct answer is next question. Bioaccumulation means the gradual increase in the amount of chemical pollutants in a single species over a period of time. The gradual increase in the amount of chemical pollutants in different species through food chain. Option C, the accumulation of biotic marine species in a single place. And option D, accumulation of exotic coral in warm water. If you know the definition, this question will be very easy for you. And the correct answer is A. Next question. Which among the following is correct? A. Pioneer species are stable, more mature, and more tolerant in an ecosystem. B. Primary succession is very fast and takes less time. Option C. Secondary succession is very slow in nature. Or option D. Secondary succession starts from that place where life existed before. You have to find correct answer.
The correct answer is option D. Next question. Which of the following is true with regard to biotic interactions? It is a very important topic. Option A, amensalism, where both species are harmed. Commensalism, where both species are benefits. Parasitism, where one species is harmed and other remain neutral. Mutualism, where both species are benefited. You can take your time by pausing the video. And the correct answer is option D. If you have majority of the question right, you can skip the analysis part. And if you want to continue, then we can analyze all the question right from first question. So let's start from first question. यहाँ पे बोला क्या गया देखते हैं. In which level of ecological organization non-living things are first being included? First of all, you need to know ecological organizations होती क्या. सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं इंडिविजुअल. देखो सबसे बेस और बेस में क्या होता है? इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स क्या हो गए? जैसे एक ह्यूमन बीइंग हम ले लेते हैं, इसे कहते हैं हम इंडिविजुअल. एज वी गो अप, अब एक इंडिविजुअल से अगर 3 इंडिविजुअल आ गए, अब 3 इंसान यहाँ पर आ गए, तो ये क्या बन गई इनकी पॉपुलेशन. एज वी गो अप, अब ह्यूमन बींग्स तो हैं यहाँ पे, अब ह्यूमन बींग्स के साथ कैट भी आ गई हैं, डॉग भी आ गए, और लिविंग थिंग्स कोई भी प्लांट्स आ गए, कुछ भी आ गया. इसे कहते हैं हम क्या? कम्युनिटी. पहले एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बींग था तो हम उसे इंडिविजुअल कहा. अब सेम स्पीशीज के बहुत सारे इंडिविजुअल आ गए तो हमने उसे पॉपुलेशन कहा. और जब डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल साथ आ गए हम उसे कम्युनिटी कहते हैं. अब इसके ऊपर एक लेवल में जाएंगे, उसमें क्या होता है? ह्यूमन है, डॉग हैं, कैट हैं, प्लांट हैं, बट इसके साथ हम ऐड करेंगे एयर, सनलाइट, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हम ऐड करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम. ये फर्स्ट ऐसी स्टेज है जिसमें कौन इंक्लूड हो रहा है? नॉन लिविंग थिंग्स. क्यों? एयर और सनलाइट क्या? नॉन लिविंग थिंग्स. अगर हम इससे भी एक ऊपर स्टेज चलें, उसे क्या कहेंगे? बायोम. बायोम क्या हो गया? बायोम हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम. जैसे हम मान सकते हैं कि फॉरेस्ट बायोम, क्योंकि फॉरेस्ट में कंडीशंस अलग होंगी, और डेजर्ट बायोम, डेजर्ट की कंडीशन अलग होगी. डेजर्ट में आपको सनलाइट भी मिलने वाली है, ये सब कुछ मिलने वाला है इकोसिस्टम का. और फॉरेस्ट में भी आपको सब कुछ मिलने वाला है, लिविंग थिंग्स भी आपको मिलने वाले हैं फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज. आपको डेजर्ट में भी लिविंग थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज मिलने वाले हैं. एट द सेम टाइम आपको नॉन लिविंग थिंग्स भी साथ मिलेंगी. तो बायोम ये हो गया. अब बायोम का अगर हम एक और ऊपर चलें, उससे क्या कहते हैं? बायोस्फीयर. बायोस्फीयर कौन सी होती है? लाइफ सस्टेनिंग स्फीयर. जहाँ पे हम क्या करते हैं? हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर. इनके पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर. तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. इंडिविजुअल के ऊपर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ऊपर कम्युनिटी, कम्युनिटी के ऊपर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के ऊपर बायोम, और बायोम के ऊपर क्या? हमारा बायोस्फीयर. और फर्स्ट टाइम नॉन लिविंग थिंग कहाँ इंक्लूड होते हैं? हमारे इकोसिस्टम में. चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ. नीश इज अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द स्पीशीज इन हिज हैबिटेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्ट्रिक्ट. पहले हम उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं. नीश होता है क्या बेसिकली? नीश होता है बेसिकली कि कोई भी स्पीशीज का फंक्शन क्या है उसके हैबिटेट में. ठीक है. अब हमने टाइप की बात कर रहे हैं. हैबिटेट नीश. हैबिटेट नीश क्या होगा? कि आप सपोज पूंछ के रहने वाले हो, तो आप पूंछ में आराम से रह सकते हो. बट अगर हम आपको कहाँ छोड़ के आ जाएं, साइबेरिया में, मे बी आप वहाँ पे भी सर्वाइवल कर लो -40 डिग्री पे. बट जो बेस्ट कंडीशन आपको मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है? आपकी पूंछ में. मतलब सर्वाइवल तो आप कर लोगे, बट आपको अगर कहीं पे फ्लोरिस्ट होना है, जहाँ पे आपको एक्सटेंशन की सबसे कम कमी हो, वो आपका क्या हो गया? हैबिटेट नीश. आपका फेवरेट प्लेस, उसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट नीश. फूड नीश क्या हो गया? कि आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है खाने में? एग्जाम्पल ले लेते हैं मोमोज. आपको सबसे ज़्यादा पसंद है मोमोज खाने पे. और अगर इसके अलावा आप चपाती और दाल खा रहे हो, आप उससे सर्वाइव कर रहे हो. आप ब्रेड खा रहे हो, उसके साथ कोई
सब्जी भी खा रहे हो, चलो मान लेते हैं, ठीक है। आप उसके साथ भी क्या करोगे, सर्वाइव करोगे। बट आपको मज़ा क्या आता है सबसे ज़्यादा खाने में? मोमोज आता है। ये आपका क्या हो गया, फूड नीश। रिप्रोडक्शन नीश क्या हो गया, रिप्रोडक्शन नीश हो गया कि एक स्पेशल साइट आपके लिए हो जहाँ पे रिप्रोडक्शन आप कर सकते हो। जैसे आप एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हम, ऑलिव रेडली सी टर्टल। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल इनके लिए प्लेस होती है कौन सी, सैंडी बीच। ये क्या करते हैं, सैंड में आके बीच में वहाँ पे अपने अंडे वहाँ पे दे के चले जाते हैं। ये उनके सबसे बेस्ट प्लेस है क्या, रिप्रोडक्शन के लिए। ये उनका क्या हो गया, रिप्रोडक्शन नीश नीश। और नीड नीश नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, विच इज़ नॉट अ टाइप। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक फैक्टर। ऑब्वियसली बात है, बायोटिक फैक्टर जो ना हो तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ए बायोटिक की। ए बायोटिक क्या हो गया, जिसके पास लाइफ नहीं होती है। और इधर सिर्फ एयर एक ऑप्शन है जिसके पास लाइफ नहीं है, बाकी फंजाई के पास लाइफ होती है, एल्गी के पास लाइफ होती है और डिकम्पोजर के पास लाइफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ऑब्वियसली बात है, आपको क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, नॉट की तरफ आप जरूर ध्यान रखें। करेक्ट अबाउट इकोटोन। इकोटोन की बात कर रहे हैं। इकोटोन बेसिकली होता क्या है, इकोटोन कोई भी दो डाइवर्स इकोसिस्टम में, सपोज ये फॉरेस्ट हो गया और ये हो गया बीच में क्या, डेजर्ट। फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच जो ट्रांजिशन जोन आता है, इसे हम क्या कहेंगे, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या हो गया, बीच एक इकोटोन हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, लैंड ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं। इसके बीच क्या होगा, मैनग्रूव्स। और आप इतनी बात हमेशा याद रखें कि जो इकोटोन अगर न्यूली बने तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, वहाँ पे एक्सटेंशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। बट मैच्योर इकोटोन में एक्सटेंशन रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, न्यूली फॉर्म्ड इकोटोन हैज़ हाई चांसेस ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन। बिल्कुल 100% ठीक है। मैंने अभी आपको कहा कि कोई नया नया अगर बन रहा है तो वहाँ पे स्पीशीज़ के ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सटेंशन के। क्यों, क्योंकि आप अगर फॉरेस्ट एरिया में रहते हो, फॉरेस्ट एरिया में आपको पता है कि आपको कैसे रहना, आपको खाना है कि आपको हर चीज़ पता है। बट अगर आपको वहाँ से उठा के बाहर कहीं ले जाए जहाँ पे सेम कंडीशंस नहीं है, तो वहाँ पे आपकी सर्वाइवल को बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। वहाँ पे एक्सटेंशन रेट आपका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। सेकंड में चलते हैं। मैच्योर इकोटोन हैज़ हाई चांसेस ऑफ स्पीशीज सर्वाइवल। ऑब्वियस सी बात है, देखो अब अगर आपको बाई चांस निकाल दिया फॉरेस्ट से बाहर, यहाँ पे आपके एक्सटेंशन के ज़्यादा चांसेस थे, बट आप यहाँ पे पिछले 30 साल से रह रहे हो। अब आपको इस एरिया का भी पता चल गया कि ग्रास लैंड में कैसे रहा जाता है, यहाँ पे मुझे फूड कैसे मिलेगा, मुझे यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कैसे मिलेगी, आपको रहने सहने का हर चीज़ पता है, आपको प्रेडेटर्स का पता है कि उनसे कैसे बचना है। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको इस एरिया के बारे में पता चल गया, आपके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो गए। तो उन्होंने कहा मैच्योर इकोटोन में आपके ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इकोसिस्टम विल बी द रीजन बिटवीन द टू डाइवर्स इकोसिस्टम। ऑब्वियसली बात, अभी मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए। ये दो डाइवर्स इकोसिस्टम, एक फॉरेस्ट है और एक डेजर्ट है। इसके बीच जो एरियाज को कहते हैं हम इकोटोन। लैंड है, ये सी है, इसके बीच कौन सा एरिया, मैनग्रोव्स, इसको हम क्या कहते हैं, इकोटोन। ये भी बिल्कुल ठीक है। मैच्योर इकोटोन विल हैव लेस बायोडाइवर्सिटी देन एडजेसेंट इकोसिस्टम्स। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप देख सकते हो, अगर मान लेते हैं इस फॉरेस्ट में 10 स्पीशीज रहती हैं, इस डेजर्ट में भी कितनी स्पीशीज रहती हैं, 10। आधी स्पीशीज ये यहाँ से थोड़ा आने की कोशिश यहाँ पे करेंगी और ये 10 भी यहाँ पे आएंगी थोड़ी सी। अगर मान लेते हैं 10 में से कम 7 स्पीशीज यहाँ पे आ जाती हैं और इस डेजर्ट से भी कम से कम 6 स्पीशीज इधर आ जाती हैं। अगर हम इन दोनों स्पीशीज को ऐड करेंगे, हमारे पास टोटल सम ऑफ 13 आ जाएगा, जो कि एडजेसेंट साइड से हमारा क्या है, ज़्यादा स्पीशीज है, उसकी डाइवर्सिटी। तो लेस नहीं होने वाला है, इसका मतलब क्या होने वाला है, मोर। ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देन अगेन नॉट करेक्ट की बात आ रही है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज बाई डायरेक्शनल। ऑब्वियस सी बात है कि ये गलत है। क्यों गलत है, आपने सुना ही होगा। सबसे पहले हमारे बेस में कौन होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ये सनलाइट की हेल्प से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। और इनके ऊपर डिपेंड कौन होते हैं, हर्बीवरस एनिमल्स। हर्बीवरस के ऊपर कौन डिपेंड होता है, कार्निवरस। और कार्निवरस के ऊपर कौन डिपेंड होता है, ऑमनीवरस। इसका मतलब क्या है कि ऑटोट्रॉप से एनर्जी कौन ले रहा है, हर्बीवरस एनिमल। हर्बीवरस एनिमल से एनर्जी कौन ले रहा है, उनको खा के, कार्निवरस। और कार्निवरस से कौन ले रहा है, ऑमनीवरस। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि प्लांट किसको खा रहे हैं, हर्बीवरस को खा रहे हैं या कार्निवरस को खा रहे हैं। आपने ये भी नहीं देखा होगा कि हर्बीवरस एनिमल कार्निवरस को खा रहे हैं या कार्निवर हर्बीवरस एनिमल ऑमनीवरस को खा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी की डायरेक्शन सिर्फ एक है, पहले ऑटोट्रॉप से हर्बीवरस, हर्बीवरस से कार्निवरस, कार्निवरस से ऑमनीवरस। यूनी डायरेक्शन होती है, बाई डायरेक्शनल नहीं होती है। ये पहला ऑप्शन गलत हो गया।
हम सेकंड ऑप्शन की तरफ ही देख ही लेते हैं क्या ऑप्शन है। ऑटोट्रॉप्स विल बी एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। ऑब्वियस मैंने बात की है कि अगर कोई पिरामिड बन रहा है तो ऑटोट्रॉप्स कहाँ पे होंगे, बॉटम में होंगे। एनर्जी क्योंकि सबसे पहले किनको मिल रही है, ऑटोट्रॉप्स को मिल रही है फ्रॉम सनलाइट, और इसी को कन्वर्ट करते हैं अपना फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। सी ऑप्शन, हर्बीवरस आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। देखो उससे पहले मैं आपको डीप समझा देता हूँ, फिर उसमें हम सी में आएंगे ये गलत क्यों है। प्राइमरी सर्कल प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल ठीक है ये। क्यों? क्योंकि सबसे पहले खाना कौन प्रोड्यूस करा, ऑटोट्रॉप्स, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, सनलाइट को यूज करके। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर यही होगी। अब हम चलते हैं इस स्टेटमेंट की तरफ, हर्बीवरस आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इस स्टेज, ये फर्स्ट एक ऐसी स्टेज है जहां से ना ऊपर वाली स्टेज वालों को क्या मिलने वाला है, एनिमल्स को मीट मिलने वाला, उनको फ्लैश मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है कि ये कोई भी अगर आपको पहली बार कोई चीज़ मिल रही है तो आप उसके प्रोड्यूसर हो, क्योंकि आपको ऑटोट्रॉप से तो मीट मिलने नहीं वाला है। आपको पहली बार कहाँ से मिलने वाला है, हर्बीवरस से। तो अगर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं तो आप क्या होगे, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। हम कॉर्निवरस को प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं कह सकते। क्यों? तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉर्निवरस से पहले हमें हर्बीवरस से क्या मिल जाता है, हमें मीट ऑलरेडी मिल जाता है। इस स्टेज में हमें ऑलरेडी मीट मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या, एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट होगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो एनर्जी सनलाइट से आ रही है सबसे ज़्यादा ऑटोट्रॉप्स ले रहे हैं। जिन सब में क्या आ गया, ग्रीन प्लांट्स, सब कुछ प्लांट्स, ट्रीज, हर चीज़ जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोट्रॉप्स में आ गई है। अब ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड कौन करता है, हर्बीवरस। हर्बीवरस पे डिपेंड कौन करता है, कॉर्निवरस। ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास, ऑटोट्रॉप्स के पास। ये अपना एक स्मॉल पोर्शन, जब इन ऑटोट्रॉप्स को कौन खाएंगे, हर्बीवरस, तो स्मॉल पोर्शन किसको दे देंगे, हर्बीवरस को। और हर्बीवरस को जब कॉर्निवरस खाएंगे तो कॉर्निवरस को एक स्मॉल पोर्शन दे देंगे अपनी एनर्जी का। तो आपको पता होना चाहिए 10% रूल। 10% रूल क्या बोलता है कि अगर इस स्टेज में ना सपोज कितने है एनर्जी इसको मिल रही है, 10,000 एनर्जी इसको मिल रही है, तो सेकंड स्टेज में कितना आने वाली है, 1000। अगर हम उससे ऊपर वाले एक स्टेज में जाएंगे, इसका कितने मिलने वाली है, 100। अगर हम लास्ट स्टेज में जाना चाहेंगे तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, 100। इसका मतलब क्या, एक स्टेज से ऊपर स्टेज में जाओ तो 10% सिर्फ एनर्जी ऊपर जाती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। बायोमास पिरामिड इज बायोमास पिरामिड ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, और बायोमास पिरामिड ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम इज अपराइट। बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या कर दिया हमने, इंटरचेंज कर दिया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि देखो ये ऑटोट्रॉप्स हो गए, ये हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। ऑटोट्रॉप्स में क्या आ गए, ट्रीज आ गए। देखो सबसे ज़्यादा अगर हम एक चेक कर लें, सबसे ज़्यादा अगर ऑटोट्रॉप्स अगर हम पूरे वर्ल्ड के क्या कर लें, जितने भी ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं, सबका हम वेट करें, उसका मास चेक करें, ठीक है, उसमें मास कितना कंटेन है, उसका बायोमास कितना है, तो ऑब्वियसली बात है सबसे ज़्यादा वेट ऑटोट्रॉप्स का होगा। उसके बाद हमारे आते हैं कौन, हर्बीवरस एनिमल्स। हर्बीवरस एनिमल्स से हमारे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, आपने देखा होगा हर्बीवरस हमारे बड़े बड़े होते हैं, जैसे बुफेलो हो गया। तो अगर उन सबको ऐड करें, उनका वेट क्या आता है, ऑटोट्रॉप्स के बाद सिर्फ उनका वेट आता है, उनमें बायोमास वो कंटेन है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कॉर्निवरस किसको खा के जिंदा रह रहे हैं, हर्बीवरस को। इसका मतलब क्या है कि कॉर्निवरस के मुकाबले हर्बीवरस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके वो कॉर्निवरस को सर्वाइव कर सकते हैं, इन पर डिपेंड रह के इनको खाने के बाद। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे ज़्यादा बायोमास सेकंड नंबर किसका होगा, हर्बीवरस का। अगर हर्बीवरस को ये खा रहे हैं तो कॉर्निवरस का उससे कम होगा। अगर कॉर्निवरस को ऑमनीवरस खा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इनको सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। सपोज कि अगर ऑमनीवरस कितने प्रेजेंट है, 200 स्पीच, अगर कोई भी पॉपुलेशन की इंडिविजुअल प्रेजेंट है, तो कम से कम कॉर्निवरस 500 प्लस या 1000 प्लस तो होने चाहिए, तब जाके ये सर्वाइव कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक टाइम मील थोड़ी लेंगे ये, एटलीस्ट पूरी लाइफ टाइम में 20 से 50 से 100 से 200 टाइम मील लेंगे। तो इनकी पॉपुलेशन कम से कम नीचे वाली स्टेज की मल्टीप्लाई 20 या 30 प्लस 40 होनी चाहिए, तब जाके वो ऊपर वाली स्पीशीज सर्वाइव कर पाएगी। इसका मतलब क्या है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बायोमास पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है। बट ऑन दी अदर हैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम का बहुत ज़्यादा कम होता है। कम क्यों होता है, बेसिकली कम आई मीन टू से हमेशा इन्वर्टेड होता है। और बायोमास पिरामिड ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम इज अपराइट, अपराइट नहीं होता है, बेसिकली इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड क्यों होता है, अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये जो स्मॉल मछली हैं जो इस सेकंड लेवल पे होंगी, ये क्या खाती हैं, प्लैंकटॉन्स। और प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, बहुत छोटा, उनका मास बहुत ज़्यादा कम होता है, और इनकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होती है। बट
अब इनकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी ज़्यादा ग्रोथ करते हैं बहुत, और इनको इनकी इतनी ग्रोथ होने से पहले ही ये मछलियाँ खा लेती हैं। अब ये मछलियाँ इनको खाएंगी, ये फिर से ग्रो करेंगे, इनको मछलियाँ खाती जाएंगी, इनका ज़्यादा बायोमास होने नहीं देती। इसका मतलब क्या है, इनका बायोमास हमेशा कम रहेगा। बट ऑन दी अदर हैंड ऑटोट्रॉप्स का हमेशा क्या रहता है, ज़्यादा बायोमास रहता है। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे हम ट्री को नहीं खाता कोई हमारे इधर, हर्बीवोरस एनिमल ट्री को पूरे नहीं खाते, पर इधर प्लैंक्टन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो मछली उनको पूरा का पूरा खा जाती है। अब सेकंड क्या आती है, छोटी मछलियाँ। छोटी मछलियाँ की यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन चाहे ज़्यादा है, बट इनका मास बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो बड़ी वाली मछली है। और इधर ही सेम प्रोसीजर ऐसे ही का चलता है। इधर जो उससे ज़्यादा बड़ी मछली हैं, उनका उतना ही ज़्यादा मास हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इन इन एक्वेटिक एनिमल्स की क्या ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, ये ग्रो बहुत जल्दी करती हैं। जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल है, वो ग्रोथ उनकी बहुत ज़्यादा कम होती है। ये जल्दी ग्रो करते हैं, जल्दी मरते हैं, इसलिए ये इनको इतना जल्दी कंज्यूम कर सकते हैं। तो तभी इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड होता है। आई थिंक आपको आंसर समझ आ गया होगा, ये हमने सिर्फ इंटरचेंज कर दी थी हमने स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो एक्यूमुलेशन मीन्स। देखो बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, जब भी कोई एक्वेटिक एनिमल क्या करता है, कोई भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं किसकी, डीडीटी की, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये बेसिकली क्या है, एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, तो मतलब इतना जल्दी ये ख़त्म नहीं होता नेचर में। और दूसरी बात क्या है कि ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, ये डिजॉल्व किस में होते हैं, फैट्स में। कोई भी चीज़ अगर वाटर में डिजॉल्व होती है, वो जल्दी आपकी बॉडी के अंदर जाके जल्दी फ्लश आउट हो जाती है, बट अगर वो फैट्स में डिजॉल्व होती है तो अपने आपकी बॉडी के अंदर उतनी ज़्यादा रहती है। ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, अगर इनको छोटी मछली खाएगी। अब क्या हो गया कि उसने मान लेते हैं कि ये डीडीटी एज अ यूज़ होता है किसमें, पेस्टिसाइड एज अ यूज़ होता है फार्मर के थ्रू अपनी फील्ड में। जब ये यूज़ होता है तो कभी कभी बारिश का भी ज़्यादा आ गई, डीडीटी बह के कहाँ चला गया, किसी लेक में चला गया, वहाँ पे ये मछली थी। इस मछली ने क्या कर लिया, डीडीटी खा लिया, अपने कुछ खा रही थी, प्लैंक्टॉन्स खा रही थी, प्लैंक्टॉन्स के बीच उसको मिल गया क्या, डीडीटी पार्टिकल मिल गया, तो उन्होंने खा लिया। ऑब्वियसली बात है, इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है तो उसकी बॉडी के अंदर रहेगा। अब क्या हो रहा है कि नेक्स्ट टाइम जब बारिश आएगी फिर डीडीटी और थोड़ा आएगा, और यही मछली अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ये वाले प्लांट अभी तक ये डीडीटी के कंटेंट पॉल्यूटेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के ट्रेसेस उसके अंदर ऑलरेडी उतने हैं जितने पहले एग्जिस्ट करते थे। अब ये और खाएगी, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब 10-15 दिन बाद और बारिश हो रही है, इसके अंदर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट और बढ़ेंगे क्योंकि ये और खाती जाएगी। अब देखो इसकी एक लाइफ में ये एक ही इंडिविजुअल है, सेम इंडिविजुअल विद डिफरेंट टाइम स्पेड, मतलब 1 महीने के बाद। अब ये 2 महीने के बाद क्या हो रहा है कि उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा केमिकल पॉल्यूटेंट इंक्रीज होते जा रहे हैं, उनकी मात्रा इंक्रीज होती जा रही है सेम स्पीड सेम एनिमल के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब सेम एनिमल के अंदर क्या हो रहा है कि पॉल्यूटेंट ऑर्गेनिक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट अगर बढ़ते जाए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाए, उसे हम क्या कहते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। और सेकंड चीज़ क्या होती है, देखो सेकंड चीज़ होती है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अब हम फिर से एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास एक छोटी मछली है, ये थोड़ी बड़ी वाली मछली है, इसका नाम हम रखते हैं टूना। और ये और ज़्यादा बड़ी मछली है, इसका नाम हम क्या रखते हैं, शार्क। ठीक है। अब देखो ये छोटी मछली क्या करती है, बेसिकली घूम रही थी, इसने प्लैंकटन खाए, वैसे ही सेम प्रोसीजर क्या, डीडीटी जब बारिश आई, डीडीटी बहकर कहाँ पे आ गया, वाटर सोर्स में आ गया, प्लैंक्टॉन्स के ऊपर पड़ा हुआ था, प्लैंक्टॉन्स इस मछली ने खाए, तो इसके अंदर क्या हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीडीटी के आगे। तो इस मछली को अब कौन खाने वाला है, ऑब्वियसली बात है इस मछली को खाने वाला है, ये टूना खाने वाली है। अब टूना अब जैसे ही खाएगी तो ये 2 पॉल्यूटेंट्स इस किसके अंदर आ जाएंगे, टूना के अंदर आ जाएंगे। अब ऑब्वियसली बात है कि टूना अपनी लाइफ में सिर्फ एक मछली नहीं खाने वाली। मान लेते हैं कि इसने अपनी टूना ने पूरी लाइफ में 10 ये वाली मछली खाई है जिनके अंदर 2-2 पॉल्यूटेंट्स थे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑटोमेटिकली टूना के अंदर कितने आ गए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स 20, क्योंकि उसने 10 खाई हैं, अगर हर के अंदर 2 हैं तो मल्टीप्लाई हमने 2 से कर दिया, 20 आ गई। अब टूना को कौन खा रहा है, टूना को खा रहा है हमारी शार्क। और मान लेते हैं कि शार्क ने अपनी पूरी लाइफ में कितने टूना खाई हैं, 10। अगर एक टूना के अंदर 20 मॉलिक्यूल्स हैं डीडीटी के, तो ऑब्वियसली बात है शार्क के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, 200। क्यों? क्योंकि वो 10 खा रही है और हर किसी के अंदर 20 है। तो इसका मतलब क्या है कि बिकॉज ऑफ फूड चेन क्या हो रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी इंक्रीज हो रही है,
केमिकल पॉल्यूटेंट्स की। इन केमिकल पॉल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है थ्रू फूड चेन। डिफरेंट स्पीशीज है। यहाँ पे देखो ऊपर क्या था, यहाँ पे सेम स्पीशीज का फिश थी, सेम शिप, सॉरी सेम फिश एंड तक रही थी। बट यहाँ पे क्या हुआ कि पहले फूड चेन के थ्रू पहले मछली ने खाया डीडीटी, छोटी वाली ने, फिर उसको टूना ने खाया, टूना को किसने खाया, शार्क ने खाया। डिफरेंट फूड चेन के डिफरेंट स्पीशीज के बीच जा रही है, उसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ये दो टर्म्स याद रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बायोडाइवर्सिटी को लेकर। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? पाइनर स्पीशीज आर स्टेबल, मैच्योर एंड मोर टॉलरेंट इन एन इकोसिस्टम। देखो पाइनर स्पीशीज क्या होती है, जो अभी अभी क्या लाइफ जहाँ पे स्टार्ट हुई है उसे कहते हैं पाइनर स्पीशीज। तो पाइनर जहाँ पे अभी भी लाइफ स्टार्ट हुई है वो सबसे ज़्यादा वनरेबल होती है, सबसे ज़्यादा वनरेबल। वो स्टेबल नहीं होती है, वो मैच्योर बिल्कुल नहीं होती है, उसको एक्सटेंशन का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। सबसे स्टेबल कौन सी होती है? क्लाइमेक्स स्पीशीज। जब पाइनर स्पीशीज 100 and 1000 ऑफ ईयर रह रह के इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट हो के क्या करती है, डेवलप होती है, उसे हम एंड में क्या कहते हैं? क्लाइमेक्स स्पीशीज। जैसे इस टाइम हम ह्यूमन की एग्जांपल लेते हैं, इस टाइम ह्यूमन क्या है? होमो सैपियन। उससे पहले थे होमो इरेक्टस, उससे पहले थे हम होमो हैबिलस। होमो हैबिलस से होमो इरेक्टस, फिर नेर्थेंडल्स, उसके बाद होमो सेपियंस। कैसे बने हम? बेसिकली हम एवोल्यूशन के थ्रू बने। अब होमो सेपियंस हम क्या बन गए? क्लाइमेक्स स्पीशीज। लेकिन उससे पहले हम जब एप्स थे तो हम क्या थे? पाइनियर स्पीशीज। तो उस टाइम हम स्टेबल और मैच्योर नहीं थे, उस टाइम हमें एक्सटिंक्शन का ज़्यादा खतरा था। सेकंड ऑप्शन, प्राइमरी सक्सेशन इज वेरी फास्ट एंड टेक्स लेस टाइम। प्राइमरी सक्सेशन क्या हो गया कि जहाँ पे पहले लाइफ एग्जिस्ट नहीं करी थी वहाँ पे पहली बार लाइफ आ रही है। जैसे इस टाइम एग्जांपल ले लेते हैं हम मार्स की। मार्स प्लैनेट में इस टाइम कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही है और मान लेते हैं कि वहाँ पे थोड़ा पानी आ गया और लाइफ की कंडीशंस बन गई हैं बनने की। तो ऑब्वियसली बात है इस जगह इतनी जल्दी लाइफ डेवलप नहीं होने वाली, कुछ ज़्यादा टाइम लेगी। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी सक्सेशन फास्ट नहीं होती है, ये काफ़ी स्लो होती है और ये टाइम ज़्यादा लेती है। सेकेंडरी सक्सेशन इज़ वेरी स्लो इन नेचर। नहीं, सेकेंडरी सक्सेशन तेज़ होती है। चलो मान लेते हैं क्या, एग्जांपल लेते हैं हम हवाई आइलैंड की। हवाई आइलैंड में मान लेते हैं कि कोई इंसिडेंट हो गया, जैसे वॉल्केनिक करप्शन होगी जिसकी वजह से 95% ऑफ द जो स्पीशीज हैं वो तबाह हो गई हैं और सिर्फ 5% स्पीशीज तक बची हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ना वापस जब लाइफ एग्जिस्ट करेगी उसे हम कहेंगे क्या? सेकेंडरी सक्सेशन। और इस टाइम जब लाइफ क्या होगी, वापस स्टार्ट होना शुरू होगी, तो ये काफ़ी तेज स्पीड में होगी एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन के। तो इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी सक्सेशन स्लो नहीं है, फास्ट है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लेस वेयर लाइफ एग्जिस्टेड बिफोर। ऑब्वियसली बात है, अभी मैंने आपको कहा कि अगर हवाई आइलैंड में क्या हो जाता है, किसी भी टाइप की वॉल्केनिक करप्शन हो जाती है, वहाँ पे ऑलरेडी लाइफ एग्जिस्ट करती थी एक टाइम पे, तो वहाँ पे से जो वापस लाइफ स्टार्ट होगी वहाँ पे उसे क्या कहेंगे हम? सेकेंडरी सक्सेशन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू बायोटिक इंटरेक्शन। देखो बायोटिक इंटरेक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे मैं recommend करूंगा आप जरूर इसे पढ़ लें। ऑप्शन ए, एमेंसलिज्म वेयर बोथ स्पीशीज आर हार्म। देखो एमेंसलिज्म ये नहीं होता, अगर दो स्पीशीज इंटरेक्ट कर रही हैं और अगर एक स्पीशीज को नुकसान हो रहा है, उसे हार्म हो रहा है और दूसरी स्पीशीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? एमेंसलिज्म। देखना भी, मैं आगे नेगेटिव साइन का यूज़ करूंगा, जीरो का यूज़ करूंगा और पॉजिटिव का यूज़ करूंगा। पॉजिटिव का मतलब होगा कोई भी अगर स्पीशीज बेनिफिट कर रही है, नेगेटिव का मतलब होगा उसे हार्म हो रहा है और न्यूट्रल का, जीरो का मतलब होगा न्यूट्रल, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एमेंसलिज्म में क्या होगा? एमेंसलिज्म में होगा नेगेटिव और जीरो। एक स्पीशीज को क्या हो रहा है? हार्म हो रहा है, दूसरी स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि ये एक बड़ा सा ट्री है, उसके नीचे छोटी छोटी ग्रास लगी हैं, जो शर्ब्स लगी हैं। ऑब्वियसली बात है जब सनलाइट आएगी तो इस नीचे शर्ब्स में नहीं गिरेगी। देखो इस ट्री को कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये न्यूट्रल रह रहा है। बट नीचे जो शर्ब्स हैं उनको उतनी ज़्यादा सनलाइट नहीं मिल रही है ग्रोथ करने के लिए, तो इनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? एमेंसलिज्म। ठीक है, सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कमेंसलिज्म वेयर बोथ स्पीशीज बेनिफिट्स। कमेंसलिज्म में क्या होता है? इसी का अपोजिट होता है, जहाँ पे क्या होता है एक स्पीशीज क्या करती है? बेनिफिट करती है और दूसरी न्यूट्रल रहती है। अब हम कैसे इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि कभी आपने देखा होगा कि गायें चर रही होंगी किसी फील्ड पे, तो वो क्या करती हैं? घास को जब खाती है तो कभी कभी ना वो घास का एक लंप पूरा का पूरा उखाड़ लेती हैं, जिससे क्या होता है कि जो नीचे ना मिट्टी लगी होती है सॉइल में वो भी बाहर आ जाती है। अब जो मिट्टी पोर्शन बाहर आया, इसमें जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे वो बाहर की तरफ आ गए। जब वो सरफेस की तरफ बाहर की तरफ आ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे,
तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे जो चिड़ियाँ हैं वो चिड़ियाँ किनको खा लेंगी, इन जहाँ पे जो इंसेक्ट्स बाहर आ रहे। काऊ को कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। वो क्या थी? न्यूट्रल थी। बट चिड़ियों का फ़ायदा हो गया? बिल्कुल हुआ, इसलिए उनको पॉजिटिव मिलता है। एक स्पीशीज़ का बेनिफिट हो रहा है, एक को न्यूट्रल रह रही है। थर्ड चलते हैं, पैरासाइटिज्म, वेयर वन स्पीशीज हार्म्ड एंड अदर रिमेन न्यूट्रल। ऐसा नहीं होता है। पैरासाइटिज्म ऑब्वियसली बात है, कोई एक पैरासाइट है वो किसी होस्ट की बॉडी में रह रहा है। होस्ट जो कोई भी चीज़ खा रहा है उसे अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, मेरे को न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के लिए खा रहा है, पर वही न्यूट्रिएंट्स कौन यूज़ कर रहा है? पैरासाइट, अपने सर्वाइवल के लिए। ऑब्वियसली बात है, नुकसान किसको हो रहा है? होस्ट को। और फायदा किसको हो रहा है? पैरासाइट को। मतलब क्या है कि एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को लॉस हो रहा है। होस्ट को लॉस हो रहा है और बेनिफिट किसको हो रहा है? पैरासाइट को। ऑप्शन डी, म्यूचुअलिज्म, फिर बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड। अब देखो बोथ स्पीशीज कैसे बेनिफिट करती हैं, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। अब हम लेके चलते हैं एग्जांपल किसकी, एक ले लेते हैं किसकी, बटरफ्लाई की ले लेते हैं, और एक तरफ हम क्या लेके चलते हैं? फ्लावर की। अब देखो बटरफ्लाई जा भी हम कर मान लें, कोई भी चीज़ मान लें, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए नेक्टर, चाहिए किसे? फ्लावर से। और फ्लावर को क्या चाहिए? उसको चाहिए कि मेरे पोर्स क्या हो जाए? डिस्पर्स हो जाए, दूसरे किसकी तरफ पहुंच जाए? या फूल की तरफ पहुंच जाए। ठीक है, इसे कहते हैं कि हम जो मेरे पोर्स हैं वो दूसरे फ्लावर की तरफ पहुंच जाए, क्योंकि जब ये बी उसके ऊपर आके बैठेगी तो उसकी लेग्स के साथ वो स्टिक हो जाएंगे, तो उसके पोर्स का डिस्पर्सल कौन करता है? बीज करती है। एट द सेम टाइम बीज को नेक्टर मिल रहा है जो उनको चाहिए था, तो दोनों स्पीशीज का फायदा हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? म्यूचुअलिज्म। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।